आवाज आ रही है सबको? जी सर, आवाज आ रही है। आ रही सबको आवाज ही? जी सर। चलो ठीक है। Okay, so today's topic is the extractions. Now, as you all know, in the orthodontics, because of the malocclusion, and the malocclusion occurs because of the lack of space in the arches, and there is a crowding of the teeth. So, in most of the conditions, we do the extractions. But what is the right choice for the extractions? We will discuss all the teeth that when there is an indication of the central incisor, lateral incisor, canine, premolars, or the molars. So the need for the extraction, it is because when there is an arch length tooth material discrepancy, means there is a crowding in the arch, and the space available is less and the space required is more. In that condition, we do the extractions of the tooth. For the correction of the sagittal interarch relationship, means when there is an increase in the overjet, like in patients with class 2 malocclusion, class 2 division 1, in which there is an increased overjet, and we do extractions in the upper arch to retract or retrocline the upper teeth to close the overjet, or in some time there is a reverse overjet and lower teeth they are proclined. We do extractions in the lower arch to achieve the positive overjet. When there is an abnormal size of the teeth, suppose there is a microdontia or the macrodontia, mostly the peg laterals they are present. If there is any on the one side of the arch the lateral incisor is missing, and on the other side of the arch there is a peg lateral. So depend on the case, if we have to open the space on the one side for the lateral incisor, then on the other side we will build up the lateral incisor. But suppose we have to extract the tooth in the arch, so it will be better that the tooth with the abnormal size should be extracted. Abnormal form of the tooth, if the morphology is not good and there is an skeletal jaw malrelations, so there is a different extraction protocol for the camouflage treatment and the different extraction protocol for the surgical treatment. Now suppose if there is any class 2 malocclusion, we do extractions of the upper first premolar and the lower second premolars. But if there is a surgical case, in such condition we will extract the lower premolar and the first premolar and the upper second premolar. So the choice of teeth for the extraction depend on the arch length tooth material discrepancy, depend on the how much there is any crowding in the arch. Now suppose if the crowding is severe, if there is any 10 millimeter, 12 millimeter or the 15 millimeter crowding, the choice of extraction will be different if there is any crowding of only 5 millimeter or the 6 millimeter. So depend on the amount of the crowding, we decide that what tooth we will have to extract. The second factor that is the direction and the amount of the jaw growth. That depends the type of the malocclusion and the vertical pattern of the face. That either the patient is in a vertical growth pattern जो उसका है वो high angle की तरफ है या low angle की तरफ है, that also helps in deciding the factor कि हमने कौन सा दांत जो है वो extract करना है. Depending on the facial profile, suppose there is a procumbency of the lips are procumbent. In such conditions, we do extractions of the first premolar
If the patient's profile is balanced and there is just crowding in the arch, then the extraction pattern will be different. The extraction pattern that does not affect on the facial profile, we will plan for that. Then the position of the tooth, that we have to extract, whether it is present within the arch. Sometime the tooth, they are in the abnormal positions. Like the lower second premolar, sometimes they are lingually blocked out, or they are impacted in the arch, or the maxillary canine, they are placed more palatally and they are not in the favorable positions to bring into the arch. So we will extract the tooth that are in the abnormal position. Then the age of the patients, that either the patient is the growing age or the patient, the growth is over. Accordingly and according to the type of the malocclusion, we decide the extractions. Extraction of the upper incisors. Upper central incisor, they will be extracted, or the lateral incisor when they are unfavorably impacted. Now, sometimes what happens that in the childhood during the mixed dentition period, primary dentition period, बच्चे जो है उनको कोई ट्रॉमा हो जाता है, वो गिर जाते हैं, चोट लगती है, उस वजह से क्या होता है कि देयर इज एन ट्रॉमा टू द प्राइमरी टूथ एंड देयर इज एन इनडायरेक्ट ट्रॉमा टू द परमानेंट टूथ. So what happens to, क्योंकि वो permanent tooth उस वक्त development phase में होते हैं, तो what happens there is a dilaceration in the permanent tooth, कि उनकी जो roots है उसमें dilaceration हो जाती है. तो वो जो आपके permanent incisors होते हैं, either central or the lateral, वो usually फिर erupt नहीं होते हैं. So in such conditions, because orthodontically भी उन दांतों को move करना is difficult or not possible, depend कि आपका dilaceration कहाँ है. If the dilaceration is in the apical third, फिर तो हम ये करते हैं कि एपिसेक्टमी करके और बाकी हम टूथ को जो है वो आर्च में ले आए मतलब. बट इफ देयर इज अ डायलेसेशन इन द हाफ और द मिडल, in such conditions they are in the unfavorable position, so we will have to extract the tooth. Or they are impacted, totally blocked buccally or lingually, if they are not favorable to bring into the arch. If one lateral is congenitally missing on the one side and there is a need of extraction within the arch, so it is better to extract the contralateral as well, so that कि जो anterior में जो aesthetic हो वो दोनों तरफ same हो, right और left पे. Now suppose if we extract the lateral incisor on the one side, तो हम क्या करते हैं, जिस तरफ हम lateral incisor की extraction करते हैं, उस साइड पे जो canine होगा उसको हम reshape करके lateral incisor बनाएंगे, और जो premolar होगा उसको reshape करके हम canine बनाएंगे. Now, if on the one side of the arch, right side or the left, one side of the arch, lateral incisor is missing and we have reshaped the canine and the premolars, and on the other side, normally lateral incisor is present, canine and premolars are present. तो इस तरह की conditions में क्या होता है, aesthetically जो है वो anterior जो aesthetic होती है वो बेहतर नहीं होती है. मतलब why? Because there is a problem in the gum margin, there is also problem in the shape and the shade of the tooth. So to achieve a better aesthetic, it is better to extract the contralateral lateral incisor as well, ताकि दोनों तरफ अगर हम lateral जो canine है उनको reshape करके laterals बनाएंगे, तो result will be aesthetic जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी as compare के एक side पे lateral incisor present हो, दूसरी तरफ जो है वो हम canine को reshape करेंगे. Upper incisor can be extracted when they are grossly carious. ठीक है, सपोज क्लास 2 डिवीजन 1 के पेशेंट्स आते हैं एंड वी हैव प्लान फॉर द प्रीमोलर एक्सट्रैक्शंस, एंड जो अपर सेंट्रल या लेटरल इंसाइजर जो है वो ग्रॉसली केरियस हैं एंड रेस्टोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिस्टोरेबल नहीं है. इन सच कंडीशंस वी प्रेफर टू एक्सट्रैक्ट द ग्रॉसली केरियस टूथ. malformed incisors that cannot be restored, dilacerated incisors, trauma or irreparable damage. अच्छा, एक चीज याद रखें कि आर्थोडोंटिक्स में जब भी हम एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले हम जो टूथ एक्सट्रैक्ट करेंगे विद इन द आर्च, दैट द टूथ दैट इज कंप्रोमाइज्ड. सपोज कि अगर एक पेशेंट है जिसमें हमने फर्स्ट प्रीमोलर की एक्सट्रैक्शंस करनी है, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट ऑल द फर्स्ट प्रीमोलर्स.
बट उस पेशेंट्स के जो ऑल केनाइन है, ठीक है ना, दे आर ग्रॉसली केरियस, पेरिएपिकल पैथोलॉजी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो जिस टूथ में पैथोलॉजी है या जो टूथ डैमेज्ड है, इट्स बेटर टू एक्सट्रैक्ट द डैमेज टूथ रादर देन कि आप डैमेज टूथ की ट्रीटमेंट करें और एक हेल्दी टूथ को निकाल दें। तो वी ऑलवेज प्लान कि जो कंप्रोमाइज टूथ हो सबसे पहले उसकी एक्सट्रैक्शन करें। दैट कंप्रोमाइज टूथ वो कोई भी हो सकता है ना, सेंट्रल, लेटरल, केनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, इवन मोलर, ठीक है ना। अगर फर्स्ट मोलर जो है वो कंप्रोमाइज्ड है और वो रिस्टोरेबल नहीं है, समटाइम वी एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट मोलर एज वेल। Indication for the extraction of the lower incisors: totally blocked buccal or the lingually, severely traumatized gingival recession or the bone loss, bolt-on discrepancy, in mild class 3 with lower incisor crowding. Now जो lower incisor extractions होती है, although this is also the most common extraction that is done in the orthodontics, जो most common extractions होती हैं that is upper first premolars and the lower single incisor, जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर है उसकी हम एक्सट्रैक्शंस करते हैं, ठीक है। उसका जो रीजन होता है दैट इज जो वन रीजन दैट इज क्राउडिंग इन द लोअर इंटीरियर सेगमेंट। इफ देयर इज एनी क्राउडिंग ऑफ 4 to 5 millimeter, we have the two options. Number one, we go for the interproximal reduction, means IPR, जिसको हम स्लाइसिंग भी कहते हैं, कि आप जो है वो टूथ की जो विड्थ है उसको ट्रिमिंग करते हैं, उसको साइज को रिड्यूस करेंगे, एंड वी अचीव द 4-5 मिलीमीटर स्पेस। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है वो एक सिंगल इंसाइजर की एक्सट्रैक्शंस करते हैं। ये डिपेंड करता है ऑर्थोडोंटिस्ट टू ऑर्थोडोंटिस्ट के वो उसकी चॉइस क्या है। मतलब दोनों में फर्क ये होता है कि इफ वी डू द आईपीआर, तो आईपीआर में देयर आर चांसेस ऑफ द सेंसिटिविटी, ठीक है, और वो वहाँ पे कैरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो कांटेक्ट पॉइंट है वो इतना आइडियल नहीं होता जितना नेचुरल टूथ में होता है। इफ वी डू एक्सट्रैक्ट द सिंगल इंसाइजर, तो हम क्या करते हैं, जो एक सेंट्रल इंसाइजर होगा उसको हम सेंटर में करेंगे और वी विल फिनिश द ट्रीटमेंट विद द 3 इंसाइजर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि सेंटर लाइन फिर क्या होगी। मतलब नाउ यूजुअली जो अपर जो मिड लाइन होती है वो विजिबल होती है ऑन द स्माइल, लोअर मिड लाइन इज नॉट विजिबल ऑन द स्माइल, और वो इतना अफेक्ट नहीं करती ऑन द एस्थेटिक एज कंपेयर टू द अपर सेंटर लाइन, इसीलिए हम लोअर की एक्सट्रैक्शंस कर लेते हैं। मतलब if there is any bolt-on discrepancy, we already discussed that what is the bolt-on discrepancy. हमने दो चीजें पढ़ी थी। नंबर वन इज द आर्च लेंथ टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, कि क्राउडिंग क्या है, बोल्ट-ऑन डिस्क्रिपेंसी क्या है, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन द maxillary tooth material and the mandibular tooth material. if there is any mandibular excess, तो उसमें हम यही है कि आप लोअर सिंगल इंसाइजर की एक्सट्रैक्शंस कर दें और वो बोल्ट-ऑन डिस्क्रिपेंसी खत्म हो जाती है। In mild class 3 cases, when there is an anterior reverse overjet, there is a reverse overjet in the anterior segment, depending on the severity, sometime हम क्या करते हैं, सिंगल इंसाइजर की एक्सट्रैक्शन करके लोअर इंसाइजर को रेट्रोक्लाइन करते हैं, एंड वी अचीव द पॉजिटिव ओवरजेट। Extraction of the canine. Canine will be extracted when they are ectopically erupted, means they are present buccally or the lingually in the unfavorable position, ठीक है ना। मतलब ऐसी पोजीशन में कि हम उसको आर्च में ना ला सके, इस कंडीशन में we will extract the canine. Unfavorably impacted, totally blocked buccally or lingually, deciduous canine extracted is part of the serial extractions. अच्छा, डेसिडस केनाइन की एक और भी इंडिकेशन मैंने बताई थी कि व्हेन एवर देयर इज एन अर्ली लॉस ऑफ डेसिडस केनाइन ऑफ द वन साइड, तो हम क्या करेंगे, जो कंट्रोलेटरल केनाइन होगा डेसिडस केनाइन, उसकी भी एक्सट्रैक्शन करेंगे टू प्रिवेंट द शिफ्ट इन द मिड लाइन, ताकि मिड लाइन शिफ्ट ना हो। इसलिए अगर वो हेल्दी भी है तो हम यूजुअली इसकी एक्सट्रैक्शन कर देते हैं टू अवॉइड शिफ्टिंग इन द मिड लाइन। Extraction of the first premolars जो है, they are most commonly extracted teeth as part of the orthodontic treatment. Most commonly even in the maxillary arch or the mandibular arch, जो first premolar होता है वो सबसे ज़्यादा extract किया जाता है। Why first premolars they are most commonly extracted?
space gained by their extractions can be utilized for correction both in the anterior as well as the posterior region, because जो आपका फर्स्ट प्रीमोलर होता है that is present in the middle, कि anterior आपके 6 teeth होते हैं, posterior भी आपके इतने होते हैं, तो सेंटर में होता है, तो we can utilize space both for the anterior segment as well as the posterior segment. Contact that results between the canine and the second premolar is satisfactory. जो contact बनता है between the canine and the second premolar वो भी बेहतर होता है, and leaves behind a posterior segment that offers the adequate anchorage. क्योंकि anchorage की requirement होती है, तो अगर हम premolar की extraction करते हैं, posterior हमारे पास sufficient teeth होते हैं to get a better anchorage. Indication of the premolars, they are the teeth of choice for extraction when there is a moderate to the severe anterior crowding, moderate to the severe anterior proclination, means either there is any crowding or anterior teeth they are proclined. Extraction of the second premolar when there is a mild anterior crowding and the proclination, where anchorage loss is desirable, unfavorably impacted in open bite cases, grossly decayed, and when there is an questionable prognosis. हमने शुरू में एक चीज अभी डिस्कस की थी कि फेशियल प्रोफाइल को हम असेस करके हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन. Now if the facial profile is procumbent, अगर लिप आपके प्रोकम्बेंट हैं, एंटीरियरली प्लेस्ड है, ठीक है, उस केसेस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रीमोलर की एक्सट्रैक्शन करेंगे ताकि हम टीथ को रेट्रोक्लाइन कर सकें और प्रोफाइल पे इफेक्ट पड़े. मतलब नाउ सपोज फेशियल प्रोफाइल इज बैलेंस्ड, हम कोई भी फेस में चेंजेस नहीं चाह रहे, मतलब हम चाह रहे हैं व्हाट एवर द चेंजेस अकर वो सिर्फ डेंटिशन में, मतलब उस कंडीशन में सेकंड प्रीमोलर इज द बेटर चॉइस. हम जब सेकंड प्रीमोलर पे एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा, वी विल जस्ट रिलीव द क्राउडिंग एंड जो रिमेनिंग स्पेस होगा वो पोस्टीरियर टीथ ले लेंगे, पोस्टीरियर टीथ जो है वो एंटीरियर मूव करेंगे एंड स्पेस आपका क्लोज हो जाएगा, तो क्राउडिंग आप रिलीव हो जाएगी एंड फेशियल प्रोफाइल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो द सेकंड प्रीमोलर उस सूरत में करेंगे देयर इज ए माइल्ड एंटीरियर क्राउडिंग एंड द प्रोक्लिनेशन. हमने जब एनकरेज पढ़ा था तो दो हमने चीजें पढ़ी थी, एनकरेज लॉस एंड द एनकरेज बर्न. लॉस क्या होता है, इज द अनइंटेंशनल होता है, एंड इंटेंशनल जो लॉस ऑफ एनकरेज होता है दैट इज नोन एज एनकरेज बर्न. सो द केसेस इन व्हिच देयर इज ए नीड ऑफ एनकरेज बर्न, कि हम खुद चाहते हैं कि हम पोस्टीरियर टीथ को मीजलाइज करें, उसको फॉरवर्ड मूव करें, इन दैट कंडीशन सेकंड प्रीमोलर विल बी एक्सट्रैक्टेड. Unfavorably impacted palatally or the buccally. In open bite cases, now why we extract the premolar, second premolar in the open bite cases? Now there is a concept that when the posterior teeth will come forward, they will reduce the open bite. ठीक है, जब भी posterior teeth आपके आगे आएंगे तो सपोज करें जहाँ पे मोलर प्रेजेंट है, मोलर को अगर हम आगे मूव करेंगे तो वो जो आपका वेज जो ओपन होता है, जो ओपन बाइट क्रिएट करता है, वो रिड्यूस होगा, उसकी वजह से ओपन बाइट कम होती है. और जितना हम टीथ को पोस्टीरियरली, अगर सपोज करें मोलर को हम डिस्टलाइज करेंगे, पोस्टीरियर मूव करेंगे तो आपकी ओपन बाइट इंक्रीज होगी, मोलर को हम आगे मूव करेंगे तो ओपन बाइट रिड्यूस होगी. Extraction of the first molars, they are not commonly extracted in the orthodontic therapy, does not give the adequate space in the incisor region. Now अगर if there is a grossly caries अगर है और हमने एक्सट्रैक्ट इसको करना है, मतलब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इन एक्सट्रैक्टिंग द सेकंड प्रीमोलर, मोलर, फर्स्ट मोलर और द सेकंड मोलर, वो क्या होता है, दैट इज द एनकरेज रीजन. कि एनकरेज जो है वो मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन वी एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट मोलर और इवन द सेकंड प्रीमोलर. उस रीजन पे प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास अगर फर्स्ट मोलर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो पोस्टीरियर तो हमारे पास सिर्फ सेकंड मोलर है,
तो एक टूथ से हम कैसे एनकरेज लेंगे कि हम एंटीरियर टीथ को मूव करें, मतलब नंबर वन। दूसरा ये है कि जब आप मोलर करते हैं द टूथ दैट इज इन द पोस्टीरियर सेगमेंट, तो सारे एंटीरियर टीथ को पोस्टीरियरली मूव करना इज डिफिकल्ट, नंबर वन। नंबर टू, देयर इज एन डीपनिंग ऑफ द बाइट। जब हमने पहले कहा ना कि अगर सेकंड प्री मोलर के हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो मोलर आगे आएगा तो ओपन बाइट रिड्यूस होगा। जब हम फर्स्ट मोलर की एक्सट्रैक्शन करेंगे, सेकंड मोलर आपका आगे आएगा तो आपका क्या होगा, ओपन बाइट और कम होगा, बाइट डीप हो जाएगी। मतलब सेकंड प्रीमोलर एंड द मोलर में टिप इनटू द एक्सट्रैक्शन स्पेस, वो क्या होगा कि उनकी एक्सट्रैक्शन स्पेस में उसको कांटेक्ट ठीक नहीं बनेगा, मतलब मेस्टिकेशन में बी अफेक्टेड। इंडिकेशंस क्या होती है फर्स्ट मोलर की? ओपन बाइट केसेस जहाँ पे हमने ओपन बाइट को रिड्यूस करना हो, ग्रॉसली डिकेड, हेवीली फिल्ड, mild anterior crowding and mild anterior proclination. Now अगर सपोज करें कोई भी रीजन हो, we have to extract the first molar, तो एनकरेज हम कैसे इंक्रीज करेंगे? Nowadays हमने कहा ना कि मिनी इम्प्लांट्स जो है वो हम यूज करते हैं फॉर द एनकरेज पर्पस। तो सबसे बेस्ट आजकल यही है कि we use the mini implants in the posterior segment, और हम with the help of the mini implants जो है वो हम सारे एंटीरियर टीथ की रिट्रैक्शंस करते हैं। Extraction of the second molars, second molar extraction उसकी बेसिकली जो मेन रीजन होती है दैट इज इन केसेस विद द डिस्टलाइजेशन। अगर ऐसे केसेस जिसमें हमने एंटीरियर सेगमेंट को और मोलर को डिस्टलाइज करना है, स्पेशली इन द लो एंगल केसेस, क्लास 2 डिवीजन 2 केसेस, वी डिस्टलाइज द मोलर्स। तो डिस्टलाइज मोलर करने से क्या होगा, एक तो एंटीरियर अलाइनमेंट हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, इफ वी डिस्टलाइज द मोलर्स दे विल हेल्प इन ओपनिंग द बाइट, कि बाइट उसकी ओपन हो गया, मतलब जो डीप बाइट है वो कम होके नॉर्मल बाइट की तरफ जाएगी। सो टू प्रिवेंट द थर्ड मोलर इम्पैक्शन, टू रिलीव इम्पैक्शन ऑफ द सेकंड प्रीमोलर, mild anterior crowding to enable distalization of the first molars, and in the open bite cases, मतलब extraction of the third molars, they are not extracted for the orthodontic purpose, but sometimes if the third molar is erupted, ठीक है, और हमने डिस्टलाइजेशन करनी है 4 to 5 मिलीमीटर और 3 to 4 मिलीमीटर अगर हमने डिस्टलाइजेशन करनी है, तो उसमें हम प्लान करते हैं कि वी एक्सट्रैक्ट द थर्ड मोलर्स रादर देन द सेकंड मोलर। तो उसमें हम थर्ड मोलर जो कि सपोज करें इरप्टेड हैं या फेवरेबल पोजीशन में नहीं है, वी एक्सट्रैक्ट द थर्ड मोलर्स एंड हम एंटीरियर बाकी जितने भी टीथ हैं उनकी डिस्टलाइज कर देते हैं। बट सपोज इफ द डिस्टलाइजेशन इज रिक्वायर्ड मोर देन 5 to 6 मिलीमीटर, 5-6 मिलीमीटर अगर हमें डिस्टलाइजेशन करनी है, then it is better to extract the second molar, because third molar की extraction करके सारे teeth को 5-6 मिलीमीटर डिस्लाइज करना is difficult. Now there are two type of the extraction. One is the balancing extraction, other is the compensating extraction. Balancing extraction क्या होती है? That is removal of a tooth from one side of a dental arch results in a tendency for rest of the teeth to move toward the extraction space. जैसे हमने कहा ना कि जी अगर प्राइमरी जो डेसिडस कैनाइन है एक तरफ का एक्सट्रैक्ट हो जाए या लॉस हो जाए, तो हम जो कंट्रालेटरल आपका कैनाइन होगा उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे टू प्रिवेंट द शिफ्ट इन द मिड लाइन। उसको कहते हैं बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन। ये बैलेंसिंग क्या होता है कि अगर एक साइड ऑफ द आर्च पे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे हम सपोज अगर जो पेशेंट्स यूजुअली कहते हैं ना कि जी एक दांत निकाले और हमारे टीथ अंदर कर लें, एक क्यों नहीं निकाल सकते आप, मतलब ठीक है, वो एक इसलिए नहीं निकाल सकते कि वी हैव टू डू द बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शंस, अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी द शिफ्ट इन द मिड लाइन। देन कंपनसेटिंग एक्सट्रैक्शन क्या होती है? दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ इन द अपोजिट जॉ कैरिड आउट टू प्रिजर्व द बक्कल अक्लूजर रिलेशनशिप। के सपोज करें कि आप पेशेंट्स मोलर रिलेशनशिप इज ऑलरेडी इन क्लास 1 और वो हमने अगर मेंटेन रखना है,
on the one side there is a class 1 molar relation and on the other side there is a class 2 molar relation. तो जिस तरफ क्लास 1 है तो उसमें यूजुअली हम क्या करेंगे, we will extract the maxillary as well as the mandibular tooth, दोनों करेंगे, कंपनसेट करेंगे ताकि जो आपका मोलर रिलेशन क्लास 1 है वो मेंटेन रहे उसमें. ऑन द दूसरी साइड पे क्या है, देयर इज क्लास 2 रिलेशनशिप. उसमें अगर हम मैक्सिलरी आर्च में सिंगल टूथ की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वी कैन यूटिलाइज द स्पेस फॉर क्लोजर ऑफ द ओवरजेट और द करेक्शन ऑफ द ओवरजेट, एंड हमारा जो मोलर रिलेशन है वो भी स्टेबल रहेगा. So the difference between the balancing and the compensating extraction is that balancing extraction क्या होता है, within the arch होती है, मतलब उसी arch में midline को maintain रखने के लिए. Compensating extraction क्या होती है, extraction of the tooth in the opposite arch. अगर आप maxillary arch में कर रहे हैं तो mandible में भी करते हैं ताकि जो buccal relationship है उसको maintain रख सके. मतलब इसमें बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें जी. किसी ने कोई क्वेश्चन? सर ये कंपेंसेटिंग एक्सट्रैक्शन की सही समझ नहीं आई सर. बैलेंसिंग समझ आ गई? जी सर, बैलेंसिंग समझ आ गई. कंपेंसेटिंग ये होती है कि अगर आप सपोज करें मैक्सिला में एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आपको मैंडिबल में भी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी. आपको किस कंडीशन में करनी पड़ेगी? क्लास 1 मालक्लूजन में. ठीक है, मोलर क्लास 1 में है, कैनाइन भी क्लास 1 में है. अब सपोज करें हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिला में एक्सट्रैक्शन करें और मैंडिबल में ना करें तो क्या होगा कि जो मोलर रिलेशन क्लास 1 है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कैनाइन रिलेशन क्लास 1 है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा. सो टू मेंटेन जो बक्कल अक्लूजल रिलेशनशिप, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों आर्चेस में एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, ये तो क्लास 1 हो गया. अब क्वेश्चन ये है कि जी क्लास 2 और क्लास 3 में हम क्यों नहीं करते? ठीक है, अच्छा क्लास 2 में क्या होता है, देयर इज एन मोलर भी क्लास 2 होता है, कैनाइन रिलेशन भी क्लास 2 होगा. वी विल एक्सट्रैक्ट ओनली इन द मैक्सिलरी आर्च. हम लोअर में नहीं कर रहे, सिर्फ मैक्सिला में हमने फर्स्ट प्रीमोलर की एक्सट्रैक्शन की है. तो उसमें क्या होगा, वी विल एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट प्रीमोलर और हम कैनाइन को रिट्रैक्ट करेंगे पोस्टीरियरली. जब कैनाइन को पोस्टीरियरली मूव करेंगे तो कैनाइन पहले क्लास 2 था, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू क्लास 1 रिलेशनशिप. फिर हम एंटीरियर टीथ को करेंगे. So after in the class 2 malocclusion, after extracting the single tooth on the one side, we achieve the class 1 canine. And जो molar है वो class 2 में stable है, हम उसको stable रखेंगे वहाँ. But in class 1 malocclusion, क्योंकि 1 में molar भी 1 है, canine भी 1 है, तो उसको stable रखने के लिए, maintain रखने के लिए हमें दोनों arches में extract करनी पड़ेंगी. अगर दोनों arches में extract नहीं करेंगे so to achieve the class 1 canine and class 1 molar or stable class 2 or class 3 molar is not possible. ठीक है जी? जी सर. जी किसी और ने पूछना है बेटा? Excuse me, sir. जी सर तो अगर फॉर एग्जांपल हम बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन करें तो हमें कंपनसेटिंग भी हमेशा करनी पड़ेगी? नहीं, जरूरी नहीं है ना. जरूरी नहीं है कि आप बैलेंसिंग और कंपनसेटिंग दोनों साथ साथ करें. दोनों की इंडिकेशंस मैंने बैलेंसिंग की बताई ना, कि बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शंस जो है वो यूजुअली हम करते हैं क्या कहते हैं उसमें मिक्स्ड डेंटिशन में. मतलब उसमें की भी सबसे जो बेस्ट आपकी उसकी इंडिकेशन होती है, दैट इज द एक्सट्रैक्शन अर्ली लॉस ऑफ एनी प्राइमरी टूथ. ठीक है ना. सपोज कि अगर आपका जो डेसिडस कैनाइन है वो शेड ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ कैविटी और एनी ट्रॉमा व्हाटएवर द रीजन, तो हम दूसरे कंट्रालेटरल साइड की इमीडिएटली एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, या फिर हम स्पेस मेंटेनर दें, डिपेंड करता है कंडीशन पे. उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि मिडलाइन खराब ना हो. फिर आप आ जाए परमानेंट डेंटिशन में, कि परमानेंट में हम बैलेंसिंग कहाँ करेंगे, जहाँ पे व्हेन द मिडलाइन इज नॉर्मल. ठीक है, पेशेंट्स की मिडलाइन बिल्कुल नॉर्मल है एंड हमने एंटीरियर टीथ को पोस्टीरियरली मूव करना है. मतलब इन दैट कंडीशन अगर आप राइट साइड पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो लेफ्ट पे भी करेंगे. मतलब ठीक है, लेफ्ट पे एक्सट्रैक्शन क्यों करेंगे, मतलब
ताकि वो जो मिड लाइन मेंटेन रहे और आप टीथ को रेट्रोक्लाइन कर सकें। मतलब अच्छा, मैंने जो एक इसमें आपको रीजन बताई कि इफ देयर इज एनी, एक तरफ क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप है, अक्लूजन है, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज एनी क्लास 2 अक्लूजन, जो हमने पढ़ा था ना, क्लास 2 डिवीजन 1 सब डिवीजन राइट और द लेफ्ट, ठीक है। उसमें मैंने कहा कि जहां क्लास 1 है वहां पे आप कंपनसेटिंग एक्सट्रैक्शन करें, ठीक है, और दूसरी साइड पे आप सिंगल आर्च की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब उसकी रीजन ये है कि व्हेन देयर इज एन क्लास 1 ऑन द वन साइड एंड क्लास 2 ऑन द अदर साइड, तो यूजुअली जो मैंडिबुलर आपकी मिड लाइन होती है वो शिफ्टेड होती है, वो मिड लाइन एक तरफ शिफ्ट हुई होती है। मतलब तो उसको ठीक करने के लिए जो दूसरी साइड पे एक्सट्रैक्शन होती है वो उसकी करेक्शन में हेल्प करती है। राइट सर, थैंक यू। इसकी आप ये सिर्फ डेफिनेशन याद रखें कि बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन जो है वो एक सेम आर्च में होती है, कंपनसेटिंग जो है वो अपोजिट आर्च में होती है, ठीक है। बाकी आप इंडिकेशन स्पेशली याद रखें लोअर सिंगल इंसाइजर की, कि लोअर सिंगल इंसाइजर हम क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं, नंबर 1। फिर जो फर्स्ट प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन सबसे कॉमनली क्यों होती है, मतलब उसके रीजंस बताए कि वो जिस पोजीशन में होता है उसकी पोजीशन इतनी फेवरेबल होती है कि स्पेस हम दोनों एंटीरियर सेगमेंट में भी यूज कर सकते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट में भी यूज कर सकते हैं, नंबर 1। पोस्टीरियरली हमारे पास सफिशिएंट एंकरेज होता है, मतलब देन कांटेक्ट जो रिलेशन होता है बिटवीन द कैनाइन एंड द सेकंड प्रीमोलर वो भी प्रॉपर डेवलप होता है, ठीक है जी। जी सर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच।